Compensation. Welcome to Management IQ. Package. A package can be defined as a combination of all the rewards and various benefits of an employer offer you in exchange for employment. Compensation packages tend to vary by employer. Therefore, though they include a basic salary, the fringe benefit they include often depend on the company and the specific position. विच मीन्स कम पैकेज के कॉम्बिनेशन को रिफर्ड करता है सैलरी एंड वेरियस बेनिफिट जो एम्प्लॉयर ऑफर करता है आपको रोजगार के बदले और आपको आपके जॉब के बदले. कंपनसेशन पैकेज एम्प्लॉयर द्वारा डिफर करता है, मतलब जहां पर जैसा एम्प्लॉय है वहां पर वैसा कंपनसेशन पैकेज होता है. इसलिए इनमें बेसिक सैलरी शामिल है. वो जो फ्रिंग बेनिफिट शामिल करते हैं वे अक्सर डिपेंड करते हैं कंपनी और स्पेसिफिक पोजीशन पर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंसेंटिव्स. अगर सिंपल वर्ड में जाने तो इंसेंटिव वो मेजर होता है जो कि यूज किया जाता है एम्प्लॉय और पीपल को मोटिवेट करने के लिए. एंड इंसेंटिव प्रोवाइड एडिशनल कंपनसेशन फॉर दोज एम्प्लॉय हु परफॉर्म वेल. इट अटेम्प्ट टू टाई एडिशनल कंपनसेशन एज डायरेक्टली एज पॉसिबल टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. Further, incentives are monetary benefit paid to workmen in recognition of their outstanding profession or performance. So types of incentive. So there are two types of incentive. First one is financial and the another one is non-financial incentive. Financial incentives. ये वो इंसेंटिव है जो कि डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म एंड ऑल्सो ये सर्व होता है टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस. फाइनेंशियल इंसेंटिव यूजुअली मनी के फॉर्म में होता है और ये एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए होता है. Now the question arises where it is used. So basically financial incentive is used at the place of pay and allowance, bonus, profit sharing and retirement benefit etc. Pay and allowance. Matlab for every employee, salary is the basic monetary incentive. Second one is bonus. This is offered for over the salary or wages to the employee. Profit sharing, share with employee in future profit. And retirement benefit like provident fund, pension, etc. as an incentive when they are in organization. और एक्सेट्रा में हम लोग ले सकते हैं इनसे फाइनेंशियल इंसेंटिव में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव. मतलब इट प्लान्स एम एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेज टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल. को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन मतलब द अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंट्रीब्यूशन फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज प्री रिक्वेस्टी एंड एक्सेट्रा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. हमारा जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है वो सारे हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता. मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव कांट सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल. देयर आर सम अदर रिक्वायरमेंट लाइक प्रमोशन एक्सेट्रा आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. So there are various types of non-financial incentive in which these are following. First is job enrichment. Job enrichment मतलब if job itself become a source of motivation to individual, if jobs are made interesting, then it's called job enrichment. Second one is job security. Employee want their job to be secure, they want their job stability in future, but sometimes job stability become a compulsory thing. Another one is employee participation, involving employee in decision making of issue related to them, make them more confidence. Employee empowerment. Employee empowerment means giving more power to employee. If we giving them to more power, they feel that their job is important and this will bring use of skill and talent positively. Incentive plans for executive. Executive incentive plans या क्वार्टरली कैश अवार्ड के आधार पर प्रोवाइड करता है. नेट रेवेन्यू के मुकाबले कंपनी का परफॉर्मेंस और नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लान गोल और सेटिस्फाइड बिजनेस गोल्स. मतलब this executive incentive plans provide for a quarterly cash award based upon company performance against net revenue and net operating income plan goal and specified business goal. Executive plan क्वार्टरली कैश अवार्ड पर आधार होता है. मतलब ये प्रोवाइड करता है नेट रेवेन्यू के मुकाबले कंपनी के परफॉर्मेंस और नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लान गोल और स्पेसिफाइड बिजनेस गोल पर.
एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ESOPS। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान होता है डेट अलाउ एम्प्लॉय टू बिकम ओनर ऑफ स्टॉक इन द कंपनी दे वर्क फॉर। ये इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन प्लान होता है। कुछ ऐसे भी कारण हैं जिस कारण ESOP और एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान अदर इंसेंटिव प्लान से अलग है। लाइक फर्स्टली, only an ESOP is required by law to invest primarily in the securities of the sponsoring employer. Secondly, it is unique among qualified employee benefit plan in its ability to borrow money. As a result, large employee stock ownership plan may be used as a technique of corporate finance. Moving on to the next topic, which is employee stock ownership plan advantages and disadvantages. So you can see in the screen there are written some advantages and disadvantages of employee stock ownership plan, in which the first advantages is कैपिटल एप्रिसिएशन। कंपनी अपना कुछ या सारा इक्विटी अपने एम्प्लॉय को शेयर कर देता है, एंड बाय डूइंग सो दे कन्वर्ट देयर कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्स इनटू टैक्स फ्री कैपिटल एप्रिसिएशन। इससे ओनर को 100% अपना कंपनी सेल भी कर देता है या 50% भी सेल करता है, तो दे गेट मनी आउट ऑफ टैक्स फ्री एंड स्टिल मेंटेन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। सेकेंड वन इज इंसेंटिव बेस्ड रिटायरमेंट, मतलब प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लान टू मोटिवेट एम्प्लॉय। टैक्स एडवांटेजेस, जब एम्प्लॉयर अपने सारे शेयर सेल कर देता है अपने एम्प्लॉय में, तो उसे, जैसा कि पहले कैपिटल एप्रिसिएशन में बताया गया है कि टैक्स फ्री एंड स्टिल मेंटेन कंट्रोल ऑफ द कंपनी होता है, तो इससे उसको टैक्स एडवांटेजेस भी होता है क्योंकि उसे कम टैक्स पे करना पड़ता है और ना के बराबर पे करना पड़ता है। रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, मतलब कंपनी रिड्यूस इट्स टैक्स लाइबिलिटी बाय सेलिंग इट्स शेयर्स। On the other hand, disadvantage is dilution, मतलब the cash flow benefit must be weighted against the rate of dilution. Fiduciary liability, liquidity हाथ में नहीं होता है ओनर का, एंड स्टॉक परफॉर्मेंस इज पुअर, क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय रिटायर कर जाता है तो वो स्टॉक के साथ रिटायर कर जाता है, एंड तब कंपनी को स्टॉक परचेज करना उससे भारी पड़ता है। Moving on to the next topic, which is variable pay. Variable pay is the portion of sales compensation determined by employee performance. जब employee hit करते हैं अपने goals को, variable pay is provided as a type of bonus, incentive pay or commission. Basic salary, on the other hand, is fixed and paid out regardless of employee meeting their goals. Variable pay is the portion of compensation determined by employee performance, commonly a commission. In sales, variable pay is the proportion of sales compensation determined by employee performance. Moving on to the next topic, which is maintenance. HR का मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट वर्क स्टाफ की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की सेफ्टी और प्रमोट देने से रिलेटेड है। मतलब इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को कई प्रकार के फ्रिंग बेनिफिट जैसे हाउसिंग, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी एक्सेट्रा प्रोवाइड करनी होती है या की जाती है। सो इन दिस मेंटेनेंस देयर आर फ्यू पॉइंट्स, विच इज एम्प्लॉय सेफ्टी, मतलब लेबर और फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को एक्सीडेंट के कारण और उनसे बचाव के उपायों के बारे में पता होना चाहिए। यदि कोई एक्सीडेंट नहीं होती है तो बड़ी अमाउंट में लेबर नौकरी के लिए कम्पिटिट करते हैं और तैयार भी होते हैं, लेकिन अगर लेबर एक्सीडेंट के बारे में नहीं जानते और एक्सीडेंट होता है तो वो डिस्करेज करते हैं और प्रोडक्ट और आउटपुट आने में कमी होती है। एम्प्लॉय हेल्थ, जब एक नया वर्कर अपॉइंट किया जाता है तो यह एश्योर्ड करने के लिए पहले उसका मेडिकल एग्जामिन की जानी चाहिए कि वह ड्यूटीज़ को निभाने के लिए फिजिकली रूप से फिट है या नहीं। अगर ये नहीं एग्जामिन किया जाता है एंड वो सेलेक्ट हो जाता है बिना मेडिकल टेस्ट के, तो इन फ्यूचर बहुत टर्नओवर हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेबर वेलफेयर, ये वॉलेंट्री एफर्ट होता है बाय एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड बेस्ट कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन देयर इंडस्ट्रीज। Moving on to the next point, which is types of working environment in industries. So there are various types of working environment in industry, in which first one is implementing security system. मतलब कैमरा एंड वीडियो सर्वाइलेंस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द कंपनी और द फैक्ट्री और इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट इज चेकिंग ऑल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, कब किस टाइम बाहर जाता है, कब किस टाइम और कौन अंदर आता है, ये सारे को डे टू डे चेक करना चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इन इंडस्ट्री।
ट्रेन ऑल वर्कर, सारे वर्कर को ये ट्रेन कर देना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई डिजास्टर आए, तो उसमें कैसे सेफली उस जगह से बाहर आ जाना चाहिए। सेफ्टी सेशन, रेगुलरली एक सेफ्टी सेशन ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में रखना चाहिए टू क्रिएट अ कल्चरल अराउंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। रेगुलरली सेफ्टी सेशन शुड बी शेड्यूल्ड। सिक्योर वर्क स्पेस, सारे इंपॉर्टेंट सामान अच्छे से पैक होने चाहिए, लॉक्ड होने चाहिए, तो इससे सेफ्टी ऑफ इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड आर्टिकल्स इज टेक प्लेस। Next point is types of welfare service. So there are various types of welfare service, in which first one is maternity benefit, holiday leave, educational facilities, medical facilities, housing facilities, agencies. It is a business firm or organization that provide a specific service. An employment agency is a company contracted to hire and staff employees for other companies. Concept and scope of social securities. It is in form of maternity benefit, health insurance, voluntary and compulsory insurance, provident fund scheme, etc. This include cash payment to employee as compensation and etc. Next point is moral and productivity. Moral means something emotional and mental state and also confidence regarding future outcome. And productivity means a ratio between the output volume and the volume of input. So, correlating both of them, results show that employee engagement directly impacts productivity, and morale is a significant factor in an employee level of engagement. मतलब moral refers to someone emotion and mental health. Several studies indicate that moral can be directly tied to productivity. Results also show that employee engagement directly impacts productivity and moral is a significant factor in employees level of engagement. मतलब अगर कोई लेबर मोरली डाउन है, वीक है, और वो डिप्रेशन से बढ़ रहा आगे, तो प्रोडक्टिविटी और जो आउटपुट हमारा आएगा वो बहुत लो होगा, क्योंकि वो मोरली फिट नहीं है काम करने के लिए। बट व्हेन एन एम्प्लॉय इज मोरली फिट और ही इज हैप्पी, द प्रोडक्टिविटी इज ऑन द बेस्ट लेवल। So thank you for watching the video, hope you like it.